I hope I am audible and visible properly, students. Yes, sir. Perfect. So Yes. मैंने जैसा कहा था, let's take a quick review और फिर मैं आपको सेकंड पैराग्राफ पर भी आता हूं प्रणव भाई. रिव्यू चैप्टर का लेते हैं, the photosynthesis. I hope you are enjoying the chapter. What do you think? Yes, sir. Very much. आवाज नहीं आ रही है यार. Photosynthesis you enjoyed or not? Yes, Yes, sir. sir. You must enjoy it, my dear, because you are receiving oxygen, the prana vayu from the process. So you must enjoy it. If you are not enjoying, so you should not be thankful to the plants. तो क्या ही जियोगे फिर, है ना? कोई बात. Yes, sir. So as far as photosynthesis is concerned, we studied the definition, the anabolic process, the light to chemical, the inorganic to organic, the enzymatic, and whatnot. The requirements we studied: the water, the sunlight, the pigment, the chlorophyll, carotene, phycobilins, porphyrin head, phytol tail, shielding effect. बहुत सारे चीजें हम लोगों ने requirement में भी देखी. As far as light is concerned, 390 to 760, the range Vibgyor, the red drop effect, the immersion enhance effect, and whatnot. This सब हमने requirement में पढ़ा. One more requirement was carbon dioxide through stomata, but not the respiration. It is the photosynthesis process, uptake, not the respiration. Respiration तो वो भी oxygen ही करेगा. Photo respiration है या respiration, उसका आज discussion हम करेंगे. Then if we come to the mechanism part, the equation part, there were so many questions in equation. 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6O2, C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2, है ना? फिर उसके बहुत सारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, किसने क्या बताया, कौन से एक्सपेरिमेंट किए, कोई ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट्स वर देयर, सारी चीजें हमने पढ़ी. When we come to the part of mechanism, actual mechanism, there are two steps: light reaction and dark reaction. The light reaction is basically the energy producer, and the dark reaction is energy consumer. So as far as light reaction is concerned, when sunlight is absorbed by green part, or I should say better the thylakoid, then there is a chemiosmotic hypothesis in which proton gradient develops. I should say proton gradient develops between lumen and stroma, and those protons need to be exit out from the through the ATP synthetase, and by the conformational change there will be a synthesis of ATP. Perfect. So this is overall the reaction, overall the process. एक दोपहर में क्वेश्चन ओम ने पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था वो, कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब लो लाइट इंटेंसिटी होगी तो PS1 फंक्शनल होगा. ठीक भी है, लो लाइट इंटेंसिटी तो फोटोसिंथेसिस इतना फास्ट भी तो नहीं हो रहा है ना, और जब फोटोसिंथेसिस फास्ट नहीं हो रहा है तो इतनी एनर्जी बना के करोगे क्या? NADPH2 जैसा बेटर है यार, ATP बना के उतना भी काम कर लिया जाए. हाँ, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी क्योंकि खाना ज्यादा बनाना पड़ेगा, और टेक्निकली आई शुड से CO2 ज्यादा फिक्स करना पड़ेगा. प्रणव, ये स्टेटमेंट क्लियर है? Yes, sir. दिशा सूर्यवंशी, दिशा आर यू देयर? हाँ मनोली बोलो. बोलो बोलो, किसको डाउट है बोलो. मनोली, यू रेज्ड योर हैंड्स. So can you please repeat the question and the answer again that you asked right now? मुझे दिशा सूर्यवंशी याद आ रहा था, सिद्धि सूर्यवंशी कहना था मुझे. सिद्धि कौशिकी. Yes, sir. परफेक्ट. एवरीथिंग इज ओके, मतलब समझ में आ रहा है ना सारा जो मैंने बोला? Yes, sir. परफेक्ट. बनौली, व्हाट आई टोल्ड, मैंने आपसे ये कहा, जो मेरी बात चल रही थी, कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि लो लाइट इंटेंसिटी में PS1 इज फंक्शनल एंड सफिशिएंट. लाइट इंटेंसिटी कम है, दैट मीन आई एक्सपेक्ट कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी लेस. मनौली, Yes, sir. if rate of photosynthesis is less, that means I should say technically the rate of CO2 fixation is less. What do you think? Yes, sir. If rate of photosynthesis is slow, the CO2 fixation is slow, then why you need much more energy like NADPH2? Is it? Yes, sir.
इसीलिए जब वो चल ही नहीं रहा तो फिर why we need non cyclic ना Manali? Sir, but then you said that if low intensity is there, तो फिर सर मतलब that is helpful for plant, right? Because it will be functional at its full pace. नहीं, अरे ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्त, मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, लो लाइट इंटेंसिटी है तो क्या CO2 फिक्सेशन रेट ज्यादा होगा क्या? नहीं सर. जब रेट ऑफ CO2 फिक्सेशन ही ज्यादा नहीं है तो क्या आपको लगता है कि डार्क रिएक्शन में आपको एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्या? No sir, no sir. और फिर जब ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो NADPH2 बनाने की जरूरत ही नहीं. अब रहा सवाल बेनिफिशियल नॉन बेनिफिशियल, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ जो होती है 680 नैनोमीटर से ऊपर 700 तक, वहां पर साइक्लिक चलता है. जैसे वो 680 होता है तो वो स्विच कर जाता है नॉन साइक्लिक पर, क्योंकि तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है, CO2 फिक्सेशन बढ़ जाता है, तो नॉन साइक्लिक पर स्विच कर जाता है. अग्रीड? सर नहीं समझा ये. अरे छोटी सी बात कह रहा हूं, राठी मैडम क्या ही कर रही हैं आप? अरे भाई 680 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर से 680 नैनोमीटर पर आया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा. अरे भाई पहले 700 की रेंज आई, अब जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा ना. अरे लॉन्गर वेवलेंथ पहले आएगी ना. Yes sir. यही कर रही है. फिर दिन जैसे जैसे चढ़ेगा तो शॉर्टर वेवलेंथ होगी ना. Yes sir. तो जब वो शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो 680 वाला आएगा. यस और नो? Yes sir. तो 680 साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक? Non-cyclic. तो एनर्जी ज्यादा बनेगी या कम? कम बनेगी. अरे क्या ही कर रही है, पूरा खेल ही उल्टा कर दिया. इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था तुझे. नॉन साइक्लिक में बच्चों एनर्जी ज्यादा बनेगी या कम? ज्यादा. ज्यादा. मनाली ज्यादा बनेगी ना बेटा, NADPH2 बनेगा ना ATP के साथ साथ. Yes sir. Got it. तो जब ज्यादा बनेगी मतलब रेट ऑफ CO2 को फिक्सेशन को भी ज्यादा लग रही है ना. Yes sir. समझा? हाँ सर समझ गया. चलिए प्रणव भाई, आपका कीमियोस्मोटिक के नीचे वाला पैराग्राफ, इज इट ऑफ NCERT पैराग्राफ? सर आपको शेयर किया है मैंने. ओके, मेरे DC नंबर पे शेयर किया. यस सर. ओके. वाह प्रणव भाई, मजा लग. प्रणव आपने पूछा ना सवाल? यस सर. वेरी गुड. ये तो अच्छे धुरंधर नहीं पढ़ते, इस पैराग्राफ को आपने पढ़ लिया, मजा आ गया. बहुत बढ़िया. प्रणव भाई, अब जेई वाले हैं या नीट वाले हैं? सर नीट. अरे बहुत ही शानदार, तभी इतना ध्यान से पढ़ा दोस्त. ओके, अच्छे धुरंधरों ने छोड़ दिया बच्चे इसको. चलिए कोई बात नहीं. सेंटेंस है एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम्स. सेंटेंस जहां पर भी गड़बड़ हो मुझे बोल देना. यहां तक का क्लियर है? एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटो सिस्टम्स. Yes sir. Yes, सिंपल sir. सी बात कह रहा है, एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटो सिस्टम्स को क्या ही ट्रांसलेट करूंगा. प्रणव भाई ओके? हाँ सर. हाँ. प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. भाई जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में पास ऑन हो रहे हैं, मैं इसको इमेजिन करवाता हूं आपको, क्योंकि अब स्क्रीन शेयरिंग और बोर्ड शेयरिंग एक साथ नहीं हो पाएगी, तो इसको मैं ऐसे करवाता हूं कि A to B, B to C, C to D, D to E. This is electron transport system. Agree, Pranav? यस सर. अब इसके साथ कह रहा है एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, जब यहां से इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो रहे हो, देन प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. कुछ समझा क्या बोलना चाह रहा है? हाँ सर. OH प्लस आयंस के बारे में. हाँ, ये कहना चाह रहा है कि जब आप खेल खेल रहे हो पासिंग द पास, वो जो कुशन या पिलो को पास कर रहे हो आप,
घर का खेल मैंने बताया था एक, जब सब लोग फैमिली मेंबर्स बैठते हैं, म्यूजिक ऑन होता है और हम एक जो ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में है लाइक पिलो, उसको पास ऑन करते हैं। जैसे म्यूजिक रुकता है फिर उस बंदे को रोककर हम कुछ डांस वांस करवाते हैं। याद आया वो खेल? Yes. Yes, sir. तो वो खेल चल रहा है ये वाला, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। लेकिन इस बीच मैंने खाने की प्लेट अंदर ले ली, मैंने रसगुल्ला अंदर ले लिया, मैंने और कोई खाने का आइटम अंदर ले लिया, समोसा अंदर ले लिया, कचौरी अंदर ले ली। तो मैं क्या कर रहा हूं? व्हाइल आई एम ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट आई एम ट्रांसपोर्टिंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज व्हाट? प्रोटॉन्स। प्रणव, हाँ सर, वो समझ में आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। This happens because the primary acceptor of electron, which is located toward the outer side of the membrane, transfer its electron not to electron carrier but to an proton carrier. बहुत ही बढ़िया। ये इसलिए हो रहा है, उसने हाँ, सर, कारण भी दे दिया। हाँ बोलो। सर इस वाले सेंटेंस में डाउट था। हाँ बस यही बता रहा हूँ ना दोस्त, उसने तो कारण भी दे दिया कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, जबरनी मिटा दिया मैंने, चलो। ऐसा इसलिए होता है कि जब ए बी को दे रहा है, बी सी को दे रहा है, सी डी को दे रहा है, डी ई को दे रहा है, तो एक्चुअली शुरुआत कहां से हो गई थी? दिस हैपेंस बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर था इलेक्ट्रॉन का, जिसने रिसीव किया था, विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के बाहर है, ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन प्रोटॉन कैरियर। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो जिसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ साथ कौन था? प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टर। समझे क्या? हाँ सर, आ गया। Yes, sir. और यही तो होता है ना, साइटोक्रोम B6F बीच में बैठ के क्या कर रहा है? रिसीव तो कर रही है इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक्चुअली पंप क्या कर रहा है? वो प्रोटॉन्स। प्रणव भाई? यस सर। परफेक्ट, बहुत ही मजेदार सेंटेंस है ये तो दोस्त। फिर कह रहा है हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा। यस आई एग्री। व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन। यस आई एग्री। उधर पे क्वेश्चन पास कर रहा है और समोसा अंदर ले लिया। प्रणव भाई समझे कि नहीं? यस सर। But when this molecule passes on its electron to the electron carrier inside the membrane, the proton is released into the inner side or the lumen side of the membrane. बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई। जब ये इलेक्ट्रॉन, ये तो कैसा हुआ, ये यहां पर किसको दिया था उसने? आउटर साइड वाले को। और कौन अंदर होता है कौन बाहर होता है पता है? कौन आउटर है, PS1 की PS2? PS2। अरे प्रणव, क्या नहीं ही सर, कर रहा है, क्या ही Sir, कर रहा है PS1. भाई। मैंने बताया था ना यार, बीच में फंसा रहेगा तो उसके लिए 2 तो लगेंगे ना कम से कम। सैंडविच किसी के बीच में बनेगा तो PS2 लगेगा ना। यस सर। समझा कुछ? हाँ सर। ओके, और कोई पैराग्राफ प्रणव भाई? सर एक पूछना था, वो H+ का जो स्ट्रोमा और ल्यूमेन में ग्रेडियंट बनता है, वो क्यों बनता है वैसे? उसका काम क्या होता है? उसका काम ही तो ये था ना दोस्त कि क्या ही कर रहा है, ये बनाया, इधर पे H+ ज्यादा होते गए, इधर पे H+ यदि ज्यादा नहीं होते और इधर पर कम नहीं होते तो क्या H+ बाहर आना चाहता क्या कभी? नो सर। नहीं। यदि ये बाहर नहीं आता तो क्या इसका कभी कोई काम पड़ पाता क्या? नो सर। तो फिर पर उसके ATP, बाहर आने से इस पे क्या असर पड़ेगा? हाँ फिर से हो। सर मतलब अगर वो H+ नहीं आता तो फिर वो तो ATP बनाने के लिए ATP सिंथेज और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए ना, तो वो H+ से क्या होता है मतलब? अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि यदि ये H+ यहीं रह जाए तब भी ये काम कर जाएगा, इज इट? आप ये सोच रहे हैं दोनों, मिश्रा जी और प्रणव भाई? यस सर। दोस्त ये प्रोटॉन ही है जो उसके कन्फर्मेशन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिश्रा जी, मिश्रा सर जी समझ में नहीं आया। समझे? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बोला मैंने, तो सिर्फ इतना बोला कि ये जो H+ अंदर जमा है ना दोस्त, ये जो कॉन्सेंट्रेशन प्रोटॉन का अंदर है, दिस प्रोटॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इट्स कन्फॉर्मेशन so that
diphosphate and inorganic phosphate combines to produce ATP. Did you understand? Yes. Yes, sir. और देखो, और कोई पैराग्राफ हो तो बोलो, No, sir. और देख लो। मैंने आपको एक डायग्राम भेजा है सर, वो आप बता सकते हो? अरे बता सकता हूँ दोस्त, क्यों नहीं बता सकता हूँ, तो कोशिश तो कर ही सकता हूँ यार। नहीं बनेगा तो फिर देखते हैं मिश्रा जी, कोशिश तो कर ही लेता हूँ। अरे क्या ही पीछे पड़ गया तू, कहीं लगा इसके चक्कर में। मैंने तुझे C3 साइकिल बता दिया ना, हाँ सर। इसको बिंदास काट दे। यदि तेरे पास पेंसिल ना हो, पेन हो, हाइलाइटर हो, तो मेरी तरह इसको ऐसा कर दे। समझा क्या? हाँ सर। क्योंकि दोस्त इसमें पूछा जाने के लिए इतना कंसेप्चुअल पार्ट है, इस लर्निंग पार्ट का क्या ही करेगा। अग्रीड? हाँ सर। ओके। बताने को तो क्या मैं उसको भी पढ़ पढ़ के बता देता, A से B बनेगा, B से C बनेगा, C से D बनेगा, बट मजा नहीं आएगा ना दोस्त। चलिए, एनी डाउट टिल C3 साइकिल? सर मुझे अब बोलो। सर यानी आप C3 साइकिल के अंदर यानी एक बार साइकिल कंप्लीट होने के बाद एक कार्बन मॉलिक्यूल फिक्स होता है, तो जो ग्लूकोज है उसको बनाने के लिए तो 6 कार्बन लगते हैं, तो उसके लिए यानी एक साइकिल में हो जाता है कि 6 बार वो साइकिल रिपीट होती है। सोनक, यू अटेंडेड लास्ट लेक्चर? सर मैं लाइव में नहीं था, पर मैंने बाद में रिकॉर्डिंग कर ली थी। तो मैंने हर इसमें इंटू 6 किया ना, तो 6 साइकिल्स। ओके सर। अंडरस्टूड? यस सर। 1 carbon dioxide enters, so 1 cycle runs. So 6 carbon dioxide enters, so 6 cycle runs. Okay. Any more doubt? Achal, Chaitanya, Ishan, Liza, Jayvardhan, Mandar, Namisha, Prapti, Prathamesh. No, sir. नो सर। No, sir. Urvi, Vedant, कौशिकी, अर्णव, सिद्धि, सूर्यवंशी, अनिरुद्ध, तेजस, सोहम, स्मेरा, सिद्धि, सिद्धेश। एनी डाउट? मनौली बोलिए, यू रेज्ड योर हैंड्स। No. So can you explain once again what is shielding effect? शील्डिंग इफेक्ट, केमिस्ट्री वाला शील्डिंग इफेक्ट, मेरे बोलने में शील्डिंग इफेक्ट आ गया। दैट इज, एनीवन हु कैन टेल मी? कैरोटीन वाला, एनीवन? आपने नहीं बताया ये? अरे क्या ही कर रहा है, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि कैरोटीन जो है उसका ऑक्सीजन डेरिवेटिव कैरोटेनॉइड, ये क्लोरोफिल के फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है? क्या लिखा है हमने? सर बताया आपने? हाँ सर पता है। गजब कर रहे हो मिश्रा जी यार। मनाली मैडम, लिखा है हम लोगों ने। सर वो शील्ड पिगमेंट है। हाँ, अरे भाई शील्डिंग इफेक्ट तो हो गया होगा, केमिस्ट्री का वर्ड निकल गया मेरे मुंह से, शील्डिंग इफेक्ट। अरे शील्डिंग इफेक्ट मतलब शील्ड का काम करता है, जो फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है। मनौली, हमने लिखा है बेटा। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और कोई डाउट C3 में या C3 तक? एनी डाउट? ठीक, चलिए। सो I think we have started for, we have compared the C3 and C4, but मैंने पूरा एक्सप्लेन C3 को किया था, और C4 को मैंने कहा था कि I need to explain you photo respiration. Am I right? Yes, sir. Yes. Yes sir. Let me check the last image. Okay. So let us start one more time, that you know C3 versus C4. और इस C3 वर्सेस C4 का आज मैं कोई बोर्ड शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज एक एनसीईआरटी में पेज दिया गया, उसके लिए मुझे आपको
फोटो रेस्पिरेशन के बेस पे डिफरेंस बताना, बेस्ड ऑन फोटो रेस्पिरेशन। और मैं आपको ये तो बता चुका था कि जो C3 प्लांट है उसमें फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। इज इट? Yes, sir. Yes, sir. Or there is no photo respiration in C4. I hope this point we have already discussed. मैंने आपसे ये कहा था दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं कि C3 प्लांट जो फोटो रेस्पिरेशन करता है, तो इसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या एक एंजाइम्स की आ जाती है। कौन सा? Rubisco. Rubisco. This ribulose bisphosphate carboxylase, and one is oxygenase. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. Is performing photorespiration or plant is doing photorespiration, then the more intake of oxygen will be there. When more oxygen will be there, then this Rubisco will not act as carboxylate and will start acting like oxygenase. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Therefore, I should say the CO2 fixation decreases. Yes or no? Yes, sir. So I Yes, can sir. tell you, I can write here the yield will be decreased. Yes or no? Yes. So I should say it is the less efficient as compared to C4. Yes or no? yes, Yes, sir. But if I'm talking about that there is no photo respiration, तो ऐसे कैसे possible है कि photo respiration के बिना वो जिंदा रह जाए? Photo respiration के बिना जिंदा रह जाए, ऐसा क्या उसने सिस्टम डेवलप कर लिया? और यदि फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली वो O2 ले नहीं रहा है, CO2 छोड़ नहीं रहा है, और CO2 छोड़ नहीं रहा है तो फिर टॉक्सिसिटी क्यों नहीं हो रही है? So C3 plant के कंपैरिजन में C4 plant develop a specific type of anatomy, and they developed a specific anatomy known as Cranch anatomy. There is specific anatomy known as Cranch anatomy where, since in C3 plants, in C3, Rubisco was in mesophyll cells. Rubisco is in mesophyll cells. Perfect. Therefore, दो प्रॉब्लम वहां पर हुई। एक तो सबसे पहले हो गया फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन के चांसेस बढ़ गए क्योंकि मेसोफिल जो रुबिस्को है वो मेसोफिल सेल में पड़ा है, तो फोटो ऑक्सीडेशन हो गया इस एंजाइम का, और इसका यदि फोटो ऑक्सीडेशन हो गया तो एंजाइम खत्म हो जाएगा। एंजाइम यदि डिग्रेड हो गया, एंजाइम में डिग्रेड, और यदि एंजाइम ही डिग्रेड हो जाए तो देयरफॉर नो फोटोसिंथेसिस, और आई शुड से देयरफॉर एवरीथिंग विल बी लेस। सो बेटर है कि ऐसा किया ही ना जाए। तो एक क्रांच एनाटॉमी के दौरान ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन व्हाट C4 प्लांट डेवलप्स, how they modify and how they modify themselves better than C3, what they did, they form a layer of mesophyll cells around them. And bundle sheath cell was in the center. And here the mesophyll cell, mesophyll cell, mesophyll cell, mesophyll cell, mesophyll cell, and like this. And instead of giving Rubisco to the mesophyll cells, Rubisco lies in bundle sheath cell. तो पहली कहानी तो बच गई दोस्तों। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही थी, what we were expecting with the evolution, with the time, temperature was rising. टेम्परेचर यदि राइज कर रहा था तो टेम्परेचर राइज करने पर चांसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ रुबिस्को वाज मोर. सो व्हाट दे डिड, अगेन दे फॉर्म अ लेयर, देयरफॉर टू प्रोटेक्ट रुबिस्को, it is present in bundle sheath surrounded by mesophyll cells, and this anatomy is nothing other than Cranch anatomy.
पहली कहानी समझ में आई क्या आप लोगों को? Yes, sir. रेस्पिरेशन की छोड़ दो, अभी मैंने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बताया, रेस्पिरेशन पर भी मैं टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, डेफिनेटली आप अपने ब्रीदिंग पर सोचिए, मैं आपको ब्रीदिंग पढ़ा चुका हूं. व्हाट यू एक्सपेक्ट, व्हाट यू फील व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, द रेट ऑफ द ब्रीदिंग रेट इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज. Increase. यस, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, प्लस टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यू आर स्वेटिंग इट आउट, आप स्वेट आउट करके बॉडी को कूल करने की कोशिश कर रहे हैं. डेफिनेटली जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा तेज होने लगेगा यार. ट्रांसपिरेशन जितना ज्यादा तेज होने लगेगा उतना ही एसेंट ऑफ सैप तेजी से होने लगेगा, उसी रफ्तार से मिनरल न्यूट्रिशन वाटर ऊपर लीव्स पर पहुंचने लगेगा, रॉ मटेरियल उसी रफ्तार से पहुंचने लगेगा. व्हेन रॉ मटेरियल इज रीचिंग वेरी फास्ट, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मस्ट बी इंक्रीज. यस और नो? Yes, sir. Yes. बट दिस टाइम यदि उसे पता है कि टेम्परेचर बढ़ने के लिए मैंने कुछ ऐसी अरेंजमेंट कर रखी कि रुबिस्को डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, और रेट ऑफ टेम्परेचर अपना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ रहा है, और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, और उसी बीच उसी पोर से जहां से स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसी पोर से मैं ऑक्सीजन यदि लेता हूं तो मैं फोटो रेस्पिरेशन करके क्या ही काम करूंगा. बेटर है कि जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है ही, टेम्परेचर ज्यादा है ही, आई हैव ऑलरेडी डेवलप्ड अ क्रैंक्स एनाटॉमी, जिसकी वजह से रुबिस्को मेरा सेफ है ही, और टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने की वजह से, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होने की वजह से, एसेंट ऑफ सैप ज्यादा होने की वजह से रॉ मटेरियल ज्यादा आ रहा है, तो व्हाई नॉट आई शुड परफॉर्म द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, व्हाई आई शुड वेस्ट माय टाइम इन फोटो रेस्पिरेशन. बिकॉज जिस स्टोमेटल पोर से मुझे लेनी चाहिए CO2, मैं क्यों वहां पर ऑक्सीजन लूं? तो C4 plant developed a strategy and they minimize their photo respiration. So how they are fulfilling their requirement of oxygen? जब वो सांस नहीं ले रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कैसे कर रहे हैं? भाई फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या है? Oxygen. Oxygen. बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो ऑक्सीजन वो ले लें, क्योंकि यदि वो ऑक्सीजन लेने लगे तो फिर प्राणवायु हमें कहां से मिलेगी? बट उसकी रिक्वायरमेंट भी ऐसा तो नहीं कि रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं होगा, बट इवनिंग टाइम में आफ्टर सनसेट दे हैव सफिशिएंट टाइम टू रेस्पायर एंड टू आई शुड से एसिमुलेट ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी पार्ट. और वैसे भी उसके किसी हर पार्ट को देने की जरूरत तो पड़ती नहीं, एवरी पार्ट इज कैपेबल टू फुलफिल देयर ओन रिक्वायरमेंट. इसीलिए तो कहते हैं प्लांट्स डू नॉट ब्रीथ, क्योंकि प्लांट का हर पार्ट अपने आप में ब्रीदिंग करने में सक्षम है या रेस्पिरेशन करने में सक्षम है, एयर को लेने में कैपेबल है. सो दे डू नॉट ब्रीथ. ब्रीथ का मतलब तो ये होता है यहां स्टोर हो गई, अब यहां से पास ऑन हो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट इसे नहीं. Therefore they do not photo respire at all. तो पहली चीज तो ये होगा कि जब मीजोफिल सेल से सराउंड करके मैंने बंडल शीट सेल के अंदर दे दिया, तो दिस एनाटॉमी इज क्रैंच. दिस सिंस क्रैंच एनाटॉमी इज देयर, so Rubisco is safe even in higher temperature. Yes or no? Yes, sir. Perfect. But same time, rate of photosynthesis, rate of transpiration, what they think? Higher temperature में rate of transpiration क्या होगा? Increase. Increase. Rate of transpiration ज्यादा है, Rubisco safe है, so rate of photosynthesis must be what? Increase. Must be what? Increase. 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 Therefore, efficiency and yield is what? More. अगर ये तो समझ में आ गया कि C4 जो है इट इज मोर मतलब इट इज एफिशिएंट देन द C3, और उसके पीछे का एक लॉजिक है. लेकिन इसमें करता क्या है और फोटो रेस्पिरेशन की बात आई कहां से? पहले तो इसको समझते हैं, ये इसमें ऐसा करता क्या है. अब आई थिंक आई शुड शेयर अ डायग्राम फर्स्ट. जस्ट अ मिनट, शेयरिंग अ डायग्राम विथ यू बिकॉज उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा.
Winners, screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Simple है. What do you think? I should label it. Yes, लिखा हुआ है, मुझे लेबल करने की भी जरूरत नहीं. One is written as bundle sheath cell, mesophyll cell, and one is bundle sheath cell. Is it? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कहाँ ले जाऊं? चलो इसको नीचे ही रहने दो. So bundle sheath cell and mesophyll cell. Mesophyll cell surrounding the bundle sheath cell. Bundle sheath cell lies bit inside to protect the rubisco. Now what is happening? The atmospheric CO2 is received by which cell? Mesophyll. Mesophyll Mesophyll cell. cell. Initial fixation is performed by which cell? Mesophyll. Mesophyll cell. And then they form the first stable product. How much carbon? 4. Carbon. Therefore, the cycle is known as what? C4 C4. C4 cycle. And the product is what? oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid, that is OAA. Then what they did, उन्होंने क्या चतुराई भरा हुआ काम किया? ये तो इनिशियल फिक्सेशन था दोस्तों, मैंने कहा ना इनिशियल फिक्सेशन. अभी पूरा फिक्सेशन तो हुआ नहीं, क्योंकि तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट ही बना है अभी तो C4 एसिड. और जब पहला स्टेबल प्रोडक्ट ही बना हुआ है, इनिशियल फिक्सेशन ही हुआ है, जो कि मेसोफिल सेल में हुआ है, so they transported this acid to the bundle sheath cell. This C4 is reaching into the bundle sheath cell, and where surprisingly they performed a process known as decarboxylation. How brilliant these plants are! Decarboxylation. और काम तो उन्होंने वही कर दिया, चाल तो वही चल दी, एनाटॉमी बदल भी ली और C3 साइकिल चला भी दिया, क्योंकि once they decarboxylate, what will be releasing? CO2. और जब CO2 चलेगा तो ये परमानेंट फिक्सेशन कौन से साइकिल से होगा? C3 साइकिल से. एंड वो जो पायरुवेट बना, भाई डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, C4 एसिड था और पायरुवेट होता है 3 कार्बन वाला, पायरुवेट होता 3 कार्बन वाला, आया था 4 कार्बन वाला, डिकार्बोक्सिलेट करके 1 कार्बन इन्होंने निकाल दी और वो C3 भाई साहब रीजनरेट हो गए वापस और रीजनरेट होकर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP बना दिया, जो कि CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर था. See the brilliancy. See the brilliancy. I'm repeating. Receiver was phosphoenol pyruvate. They received carbon dioxide, लिखा हुआ atmospheric CO2, prime initially fixed into C4 acid known as oxaloacetic acid. This oxaloacetic acid transported to bundle sheath cell, where they decarboxylate, the initial very important step of this cycle, where they decarboxylate. And when they decarboxylate, one CO2 will be there, and जो C4 था, it converted to C3 compound. This C3 compound is transported back to regenerate the phosphoenol pyruvate to receive one more CO2, and the process is continuing. But the advantage is, एक तो ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर रहा, अपने आप में वही एक एडवांटेजेस. दूसरा CO2 खुद से बना ले रहा है. यदि बाहर ग्लोबल लेवल पर CO2 कम भी हो गई तो क्या ही समस्या है? इसका तो अपना CO2 का जनरेटिंग मशीनरी है जो खुद से CO2 जनरेट कर ले रहा है. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा है, खुद से CO2 बना भी ले रहा है, खुद से CO2 बना भी ले रहा है. देखिए ब्रिलियंसी तो देखिए, जिस स्टोमेटल पोर से ये निकाल रहा था ट्रांसपिरेशन वाला मटेरियल, वहां से उसे CO2 लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि CO2 तो ये खुद से बना लेता है. और जब CO2 खुद से बना ले रहा है तो ये केल्विन साइकिल बना के उतना ही फूड बना ले रहा है जितना कि C3 में बनता था. और प्रोटेक्शन सो अलग, फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है तो इफिशिएंसी सो अलग. So in that way, C4 plant is much better than C3 and developed in course of evolution. Did you understand, students? Yes, sir. सर हाँ बोलिए. सर वो बाइकार्बोनेट कहाँ से आया? कौन कहां से आया? बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट कहां से आया? HCO3 माइनस कहां से आया? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. क्या होता है बच्चों? ये लोग किसी भी डायग्राम में, जैसा आपके मॉड्यूल में दिया था ना, अभी आपने मुझे एक साइकिल पूछा था मिश्रा जी, मैंने कहा था कि छोड़ दो उसको यार. क्या होता है ये बाइकार्बोनेट? तो किसी भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का
किसी भी मैट्रिक्स का सबसे मेन कंपोनेंट है बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तो रहते ही हैं। कहां से आते हैं, क्या आते हैं, इसके लिए तो अपने को इन दोनों की भी रिएक्शंस पढ़नी पड़ेगी, जो इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल मिश्रा जी। हाँ सर। बाइकार्बोनेट हो, सोडियम हो, कैल्शियम हो, कभी 10th में आपने न्यूरल फिजियोलॉजी पढ़ी हो तो आपको ध्यान आएगा, जहां वहां से कैल्शियम निकल आते थे यार, जहां वहां से सोडियम पोटेशियम आयन निकल आते थे यार, ये सब इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के मेजर कंपोनेंट्स हैं मिश्रा जी। अंडरस्टूड? यस सर। परफेक्ट। तो बच्चों ये समझ में आया क्या, C4 साइकिल का कंसेप्ट समझ में आया क्या? यस सर। सर Yes, sir. एनी डाउट? सर लाइक ये ऐसे तो समझ जाता है, बट देन जब क्वेश्चंस आते हैं सो देन सर वो हो नहीं पाते क्वेश्चंस। क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं, इसका मतलब ही समझ में नहीं आया मनोली। क्योंकि मैं आपसे कहूं एक बात, वंस यू ग्रैब द कंसेप्ट मनोली, एक बार कंसेप्ट पकड़ में आ गया ना, तो यकीन मानिए सवाल के गलत होने की प्रोबेबिलिटी 90% से कम हो जाती है। अभी ऐसे देखते हैं, वो तो स्क्रीन था इसलिए कोई बात नहीं, मेरे एक्सप्रेशन से देखते हैं। क्या आपको ये देखकर ध्यान आ रहा है कि C4 प्लांट का, मनोली कोई नहीं बोलेगा, मनोली C4 प्लांट का CO2 रिसीवर कौन है? मनोली, यस सर। who is receiver of the carbon dioxide in C4 plants? अरे अभी तो शेयर किया था। एनीवन? PEP। फॉस्फोइनॉल प्लस पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट अभी बनाया था ना मनोली बेटा, ऊपर लिखा था ना PEP और HCO3। हाँ सर। तो फॉस्फोइनॉल, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि कॉन्फिडेंस हमें नहीं आ रहा है कि मुझे वो याद आ रहा है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज द रिसीवर। डू यू नो हु इज द रिसीवर इन C3 मनोली? सर रुबिस्को। रुबिस्को, परफेक्ट। तो जैसा उस पर रुबिस्को है वैसे इधर पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है। जैसी और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट मतलब 3 कार्बन वाला, यस और नो? यस सर। CO2 को रिसीव करके पहले वो फिक्स करके बनाता है C4 एसिड मनोली, अंडरस्टूड? यस सर। वो किसने किया? मेसोफिल सेल्स। अब मेसोफिल सेल ने इनिशियल तो फिक्स कर दिया, लेकिन इसके पास रुबिस्को तो है नहीं, तो परमानेंट फिक्सिंग तो होगी नहीं, तो इसने C4 एसिड को किसको दे दिया? बंडल शीट सेल्स। और बंडल शीट सेल ने वहां अंदर जाकर एक प्रोसेस कर ली, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन, अंडरस्टूड? यस सर। और जैसे डीकार्बोक्सिलेशन किया जाएगा तो डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया गया, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होकर किसमें पड़ी है? बंडल शीट सेल्स। और रुबिस्को भी कहां पड़ा हुआ है? बंडल शीट सेल्स। CO2 भी पड़ा है, रुबिस्को भी पड़ा है, तो इससे बेहतरीन तो स्थिति नहीं हो सकती। तो C3 साइकिल स्टार्ट्स, यस और नो? यस सर। Which is called as Calvin cycle, which is running in what? Bundle sheet cell, understood? यस सर। बट यदि ऐसा हुआ तो फिर ये साइकिल चलेगा कैसे? तो जहां डिकार्बोक्सिलेशन जैसी होता है, C4 एसिड से जैसे ही डिकार्बोक्सिलेशन हुआ वहां पर बन जाता है पायरुवेट, और पायरुवेट होता है 3 कार्बन वाला, और वो रीजनरेट होकर वापस ट्रांसपोर्ट बैक टू मेसोफिल सेल्स, और यहां पर आकर वो फिर से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना लेता है, जिससे कि रिसीव भी हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, अंडरस्टूड? हाँ सर। तो मैंने आपको यह बताया कि C4 की एफिशिएंसी मैंने 2 रिस्पेक्ट में बताई, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में और CO2 के डेफिशिएंसी के रिस्पेक्ट। इसको तो डेफिशिएंसी होने की बात ही नहीं है भाई। और वैसे भी क्या लगता है आपको, कार्बन पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है एटमॉस्फेयर में? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसमें ओजोन को डिप्लीट करने वाली मेजर गैस कौन सी है? CFC. क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। इन सब बढ़ते हुए कॉन्सेंट्रेशन में C3 तो बेचारा क्या ही करेगा, C4 सर्वाइव कर रहा है। उसने सोचा कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सो 1-2 दिन में नहीं, 1-2 जनरेशन में नहीं, इन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इन मेनी जनरेशन सम ऑफ द C3 प्लांट डेवलप्स अ C4, सम स्टिल आर C3, क्योंकि वो बेटर अडैप्टेड यदि हो गए तो दे आर परफॉर्मिंग C3, बट सिंस C4 डू नॉट परफॉर्म एनी फोटो रेस्पिरेशन सो दे आर मोर एफिशिएंट। पहली चीज तो ये हो गई। अब मैं बार बार जिस फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं उसको समझते हैं कि मैं क्यों इंसिस्ट कर रहा हूं कि फोटो रेस्पिरेशन को समझा जाए।
हम लोगों ने ब्रीदिंग पढ़ा है दोस्तों। रेस्पिरेशन होता है, जैसी रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में फ्यूल बर्न होकर आपको एटीपी देता है, यस और नो? यस। तो Yes. क्या इस फोटो रेस्पिरेशन को मैं ये कह दूं, जैसे रेस्पिरेशन को मैं कहता था सेलुलर रेस्पिरेशन और बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल, तो इसको मैं कहता हूं फोटो प्लस बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल। चलेगा क्या? अरे चलेगा या नहीं? Yes, sir. चलेगा। इस फ्यूल को बर्न करने के लिए आपको और एनर्जी लग जाएगी, यस और नो? Yes, sir. परफेक्ट। यानी फोटो रेस्पिरेशन करने में फायदा तो छोड़िए, नुकसान और करा बैठा सीधे। फायदा तो छोड़िए, फोटो रेस्पिरेशन में फायदा तो छोड़िए, नुकसान और करा बैठा। फायदा तो वैसे भी, एडवांटेज तो वैसे भी नहीं हो रहा है, क्योंकि रूबिस को जो वो कार्बोक्सिलेज की तरह काम करने में, ऑक्सीडेज की तरह काम कर रहा है, ऊपर से इसने एनर्जी और लगा दी उसको बर्निंग करने के लिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल और फूड, व्हाटएवर दे आर फॉर्मिंग। हमारे केस में तो whatever we are eating, this is our food or fuel, I should say. But in case of plant, what they are synthesizing, this is starch. That is their food and fuel. So by taking respiration, number one loss is they are acting as oxygenase and not as carboxylase. So they cannot fix the proper food. They cannot synthesize starch. They cannot fix the CO2 plus और एनर्जी लॉस अलग कर दिए, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन उनके लिए इफेक्टिव तो नहीं होता। अब रास I have net issue today. लीजा मैडम नो प्रॉब्लम, मैं तो वैसे भी शेयर करता हूं, मैं कोई इशू नहीं। आप फोटो रेस्पिरेशन यदि नहीं कर रहे हैं, C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है इसलिए एफिशिएंट हो गया। इस फोटो रेस्पिरेशन को कहते हैं C2 पाथवे या C2 साइकिल, इसे कहते हैं C2 साइकिल। अब ये C2 साइकिल क्या है, इसके लिए ये पार्ट समझ में आया तो मैं इसको लिखवाऊं थोड़ा सा, ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलिए। सर वो उसमें एनर्जी ज्यादा लग जाती है क्या जितने कंज्यूम होते हैं जिसमें वो C2 में? फोटो रेस्पिरेशन में हाँ मतलब जितनी एनर्जी बनती है उससे ज्यादा यूज हो जाती है क्या? उससे ज्यादा बनने वाली नहीं, लेकिन जितनी उतनी कंज्यूम तो हो रही है ना, उससे ज्यादा कंज्यूम होगी नहीं कह रहे हैं। बट दोस्त यदि जो बन रही वो उसी में कंज्यूम हो रहा है तो फिर मतलब क्या बचा उसका? नो प्रॉफिट नो लॉस। मिश्रा जी हाँ सर। डालिए, हेडिंग डालिए फोटो रेस्पिरेशन। 2 स्टेटमेंट लिखाना मेरे लिए जरूरी है। हेडिंग डालिए फोटो रेस्पिरेशन, एनसीईआरटी से स्टेटमेंट लिखवाता हूं। जस्ट लेट मी टेक माय एनसीईआरटी। Yes. Okay. लिखिए, फोटो रेस्पिरेशन इज, पॉइंट नंबर 1, फोटो रेस्पिरेशन इज a light dependent process. Agreed? यस। Yes, sir. नाम में फोटो है भाई तो लाइट डिपेंडेंट होगी। नंबर 2, ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP, ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP and release of CO2. I hope you agreed. भाई जब ऑक्सीजन उसने लिया, भाई रेस्पिरेशन कर रहा है तो क्या निकालेगा वो? CO2 निकालेगा, और जो अंदर रखा हुआ मटेरियल उसको क्या करेगा? उसको बर्न करेगा। अग्रीड? Yes, sir. यस। Perfect. Point number 3 takes place in chloroplast. Takes place in क्लोरोप्लास्ट। बट यार ऐसा तो आज तक मैंने नहीं पढ़ा कि रेस्पिरेशन वाला पार्ट क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट हो जाए।
ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. सो आगे लिखेंगे takes place in chloroplast, but माइटोकॉन्ड्रिया. yes, mitochondria and peroxisomes, plant cell का बड़ा important part है, but mitochondria and peroxisomes required to complete the process. Required to complete the process. Sir, can you repeat the sentence? Takes place in chloroplast, but mitochondria and peroxisomes required to complete the process. Next, Rubisco has more affinity for CO2. Rubisco has more affinity for CO2. Therefore, Rubisco act as बोलो, अरे Rubisco act as Oxygenate. oxygenase. Sir, can you please repeat the Sir, statement? can you repeat the statement? Yes, मैं रिपीट कर देता हूं. मैंने कहा Rubisco has more affinity for CO2. लिखा यहां तक, ये लिखा Rubisco Yes. has more affinity for CO2 लिखा. Yes. उसमें ऐड कर दीजिए but at high temperature oxygenation is favored. Therefore Rubisco act as oxygenase. And do Sir, not ऐसा fix. क्यों- हाँ, एक मिनट, सेंटेंस पूरा कर देते हैं. And do not fix carbon dioxide. Smira, noted? Yes, sir. Now the question is ऐसा होता क्यों है? Is it? Yes, sir. Yes. Just imagine yourself when you are doing any strenuous exercise or temperature is more outside the body. What do you think? Your breathing is increased or decreased? Increase. Increase. Increased. So when breathing is increased, definitely आप धीरे धीरे क्या करते हैं? Breathing increase हो जाती है, CO2 का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है और O2 जाती कम है अंदर. स्मेरा, is it? Yes, sir. अब क्या हो रहा है? O2 जा रही है कम, इसलिए जरूरी होता है कि फटाफट जितना जा रहा है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए, और इसलिए फिर CO2 ज्यादा बनने लगती है और इसलिए फाटेग आता है. In case of humans, Smira, do you know this? Yes, sir. At the same time, if temperature is increasing, plant metabolism is also increasing. Yes, Yes sir. or no? Therefore, oxygenation is favored. Understood? Yes, sir. Got it. Next point. RUBP plus O2. अब चूंकि टेम्परेचर ज्यादा की अपन बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ RUBP होना है, तो RUBP प्लस O2 जब मिलेगा तो ये बनाता है PGA प्लस 2-phosphoglycolate. 2-phosphoglycolate. देखा? Yes, sir. And phosphoglycerate.
सर फॉस्फोग्लाइसेट और ग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरेट में क्या डिफरेंस है? फॉस्फोग्लाइकोलेट, यदि मैंने 2 मोल्स कह दिया तो मैंने फॉस्फोग्लाइकोलेट कह दिया. 1 molecule of phosphoglycerate and 1 molecule of phosphoglycolate. ग्लिसरेट और ग्लाइकोलेट फंक्शनल ग्रुप के फर्क पड़ जाते हैं, ग्लिसरिक एसिड और ग्लाइकोलेट. मिश्रा जी, 1 molecule of phosphoglycerate, या ऐसा समझिए आप, अभी आपने क्या लिखा, 2 phosphoglycolate लिखा मिश्रा जी? हाँ सर. परफेक्ट. मैंने इक्वेशन, अभी ये इक्वेशन लिखा आपने? यस सर. परफेक्ट. मैंने आपसे इतना कह दिया कि अभी कुछ नहीं हुआ, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजनेशन हो गया आरयूबीपी का, और जब ऑक्सीजन ऑफ आरयूबीपी का हो गया तो मैंने बना दिया पीजीए प्लस 2 फॉस्फोग्लिसरेट. यहां तक क्लियर हुआ? यस. परफेक्ट. आगे स्टेटमेंट लिखिए. पीजीए इज यूज्ड इन the C3 cycle whereas glycolate is hydrolyzed. Last point. Glycolate enters into peroxisome and oxidized for further amination and deamination. मैंने ये स्टेटमेंट यहां कहानी खत्म कर दी आपको. फर्दर एमिनेशन एंड डीएमिनेशन लिखा यहां तक? यस. परफेक्ट. अब सिंपल Yes. मैंने आपको बताया, बस फोटो रेस्पिरेशन, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं. मैंने सिर्फ इतना आपको बता दिया कि ऑक्सीजनेशन यदि होगा, ऑल्दो रुबिस्को का अफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है, बट हाई टेम्परेचर, जिसके लिए कि मैंने कहा C3 अडॉप्टेड नहीं है, उस कंडीशंस में ऑक्सीजनेशन को फेवर कर रहा है, ये फोटो रेस्पिरेशन करने लगा, आरयूबीपी ऑक्सीडाइज होने लगा, 2 कार्बन कंपाउंड वाले सब्सटेंस बनने लगे, और जिसकी वजह से फाइनली ये फिर जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में चले गए, पेरोक्सिसोम में चले गए, और उनका भी ऑक्सीडेशन हो गया, और पीजीए जो बचा है डेफिनेटली फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक स्टेबल प्रोडक्ट की तरह है, जो शायद फिर से यूज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के. बट सवाल ये उठता है कि इस पूरे इसमें रुबिस्को तो इनके पास अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि वो काम कर रहा है ऑक्सीजनेस की तरह, तो वो फूड सिंथेसाइज होने में टाइम लग जाता है. ऐसा थोड़ी कि C3 प्लांट फूड सिंथेसाइज ही नहीं करेगा, बट उस एफिशिएंसी से नहीं कर पाएगा जिससे C4 करेगा, क्योंकि C4 ये सारी प्रोसेस में टाइम खराब नहीं कर रहा है. C4 के पास रुबिस्को भी है, और C4 के पास ये टेंडेंसी भी है कि वो बंडल शीथ सेल में ही CO2 को प्रोड्यूस भी कर ले, CO2 को फिक्स भी कर ले, और हायर टेम्परेचर से रुबिस्को को बचा भी. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. परफेक्ट. मतलब मैंने आपको अभी ये बताया बच्चों कि why C3 is better than C4 is better than C3. लेकिन आप एक इमेज जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है, मनोली, अर्णव, अनिरुद्ध, सिद्धि सूर्यवंशी, आर यू देयर? Yes, sir. परफेक्ट. सिंस मेरे पास तो आंसर लिखे हुए हैं, मेरे पास तो इस पूरे कॉलम में आंसर लिखे पड़े हैं, तो ये तो मैं शेयर करना नहीं चाहता, क्योंकि अब पूरा डिस्कशन का कंक्लूजन आपसे जवाब मिल गया तो मैं समझूंगा कि समझ आया, अदरवाइज आपको समझ आया या नहीं आया ये पता चल जाएगा. तो एनी वन ऑफ यू कैन शेयर मी, शौनक, प्रणव, क्या आप मुझे ये पेज नंबर 221 का ब्लैंक वाला पार्ट जो बीच में ना लिखा हो, कैन यू शेयर एनीवन? सर मेरे इसमें थोड़ा लिखा है. लिख लिया. किसके पास ब्लैंक रखा हुआ है ये पूरा?
सर मेरे पास है पर आपका डीसी वाला नंबर नहीं है मेरे पास। आस्क शौनक। शौनक, मेरा डीसी नंबर तेरे पास नहीं रखा है, क्या ही कर रहा है फिर अभी तक? सर वो सेव करना रह गया था। प्लीज शेयर। अब तू सेव करेगा फिर शेयर करेगा। एनीवन? अरे एनीवन हु कैन शेयर भाई? सर आई एम सेंडिंग इट। शेयर? सर आई एम सेंडिंग इट। अच्छा, शेयर्ड आई थिंक। ओके, वन बाय वन मैं रीजन भी पूछूंगा, ऑप्शंस भी दिए आपके पास, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस, व्हाट डू यू थिंक? चूज फ्रॉम दिस थ्री ऑप्शंस। इन C3 plant, what you will write? Mesophyll. Mesophyll. Mesophyll, perfect. What in C4? Both. बंडल। both क्या लिखा है इन्होंने? केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस, बोथ क्यों? सर बंडल क्या शीट है। सर अरे बंडल यार, bundle sheet क्या ही कर रहे हो? डिसअपॉइंट मत करो बच्चों। स्मेरा, व्हाट डू यू थिंक? Sir, just a minute. हाँ सर वो bundle sheet है। अरे भाई, केल्विन साइकिल पूछ रहा है दोस्तों। मैंने केल्विन सर, साइकिल वो- अभी आपको बताई थी। मेसोफिल में तो इनिशियल फिक्सेशन था ना। Sir, bundle sheet cells ही होंगे. Yes, सर वो answer पूरा is only C4 bundle sheet, my dear. In C3 it will be mesophyll and in C4 it will be bundle sheet. Everyone understood? yes sir Perfect. Cell type in which the initial carboxylation reaction occurs. What do you think? Mesophyll cells. Mesophyll. In C3 it is mesophyll. In C4? Mesophyll. Perfect. हाँ, perfect, perfect. नहीं समझ में आया तो बिल्कुल बोलना बच्चों, क्योंकि ये पूरा पेज आपको पूरा C3 C4 का कंसेप्ट क्लियर कर देगा. Third, how many cell type does the leaf have that fixed CO2? 1. One in C3 and 2 in Two in C4. C4. two in C4 C4. Perfect. Next, which is the primary CO2 acceptor? RUB. RUBP in C3 and PEP PEP and C4 PEP C4. C4. Perfect. Number of carbons in the primary CO2 acceptor? 3 4 3 in अरे C3 and क्या ही 4 कर रहे हो? तुम लोग five. बिल्कुल ध्यान में नहीं दे रहे हो। सर वो Sir, 3 in five. C3 और तुम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। सर वो Casually ले 5 रहे हो। 5 कार्बन्स ध्यान से पढ़ो ना बच्चों, क्वेश्चन इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, इट इज 5 in C3. यस सर और बोलो 3 in C4. 3 in C4. तो कैसे एकदम से आपने बोल दिया 3 और 4? इसमें 4 आंसर ही नहीं है कहीं। C3 में होगा 5। अरे भाई, RUBP कितने वाला है दोस्तों? 5। 5. और PP कितने वाला है? 3। ओके, which is the primary CO2 fixation product? PGA OA. PGA and PGA OAA. OAA PG and OAA. बहुत बढ़िया. Number of carbon in the primary CO2 fixation product? 3 carbon 4. 3 and 4. आप बोलो इंस्टेंट। हाँ बिल्कुल, C3 इसलिए 3, C4 इसलिए 4। बराबर। यस चलिए, does the plant have rubisco? यस Yes. Yes.
किसमें पूछ रहा है वो? किसी भी केस में, C3. दोनों ही कंडीशन में रुबिस्को तो होगा ही होगा, है ना? Yes. Does the plant have PEP case? No. 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 No in C3. अरे भाई, no in C3 and yes in C4. C4. अरे किसको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रही है क्योंकि सिद्धेश आवाज नहीं आ रही है, शौनक आवाज नहीं आ रही है, सिद्धि सूर्यवंशी, कौशिकी झा, समझ में आ रहा है। आ रही है अर्णव, उर्वी। चलिए कहां तक पहुंचे हम लोग? क्या हो गया? पीपी केस। ओके, विच सेल इन द प्लांट है रुबिस्को? Mesophil and bundle sheet. Mesophil and Mesophil and bundle sheet. T3 mesophil, bundle sheet C4, CO2 fixation rate under high light condition। ये अब यहां से ट्रिकी क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ध्यान से देखना, और बड़ा ट्रिकी भी क्या है, बड़ा चीप टाइप का क्वेश्चन, लेकिन वो घुमा दिया थोड़ा सा। क्या कह रहा है? CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। क्या लगता है? सर लो। सर काहे को लो भैया मिश्रा C3 जी? में हाई हो। सर तो हाई हाई, बिल्कुल ठीक है मिश्रा जी। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाईलाइट कंडीशन विल बी लो इन C3, क्योंकि उसके लिए तो बना ही नहीं है वो। मनौली, सिद्धि बोर से Yes, sir. आवाज नहीं आ रही है सिद्धि? आज भूख भूख तो नहीं लग गई तुझे? नहीं, sir. CO2 fixation rate under high light condition will be low in C3 and will be high in C4. Perfect. Whether photorespiration is present at low light intensity? क्या low light intensity में photorespiration होगा? No. No, sir. Negligible. नो तो ऑप्शन ही नहीं है उसमें, नेग्लिजिबल होगा। लेकिन मुझे समझाइए why it is negligible in C3? सर क्योंकि लाइट यानी इतनी सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए वो नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात है, फोटोन का फोटो ही नहीं है तो रेस्पिरेशन क्यों हाई होगा? नेग्लिजिबल। और C4 में तो हमेशा ही नेग्लिजिबल है यार वो। अग्रीड? Yes, sir. चलिए, whether photorespiration is present at high light intensity? So High yes and for negligible. C3. Yes, तो yes कहने के वजह अपन कहते हैं हाई फॉर C3 and again negligible for C4. C4. Perfect. अगला कह रहा है whether photorespiration would be present at low CO2 concentration? High. Yes. Yes. कौन बोला हाई? कौन बोला? प्रणव। प्रणव, एक्सप्लेन करो दोस्त कि फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन। क्या फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा? सर क्योंकि वो रुबिस को ऑक्सीजनेज बनाएगा कार्बोक्सिलेज की जगह। तो सर तो फिर वो CO2 को फिक्स नहीं करेगा, तो फोटो रेस्पिरेशन होगा ना। तो फोटो रेस्पिरेशन होगा। बहुत बढ़िया। सो फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन। CO2 कॉन्सेंट्रेशन यदि लो है दोस्तों तो फोटो रेस्पिरेशन तो हाई नहीं पड़ेगा। ये अग्री क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? Yes, sir. अरे तब Yes, तो sir. CO2 CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना जब फोटो रेस्पिरेशन करेगा तो। ओके, व्हाट अबाउट C4? Negligible. हमेशा ही नेग्लिजिबल है क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। ओके, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन? Negligible. दोनों ही नेग्लिजिबल दोस्त, क्योंकि हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन तो ये क्या ही काम करेगा और उसे क्या ही काम करने की जरूरत है, तो दोनों ही नेग्लिजिबल हो जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक द टेम्परेचर ऑप्टिमम? C3 के लिए 20 से 25। 20 to 25 C3 के लिए ठीक है, और 30 to 40 या 40 के आसपास, 40 के ऊपर C4 के लिए ओके। और इसके एक एग्जाम्पल और उसके एग्जाम्पल्स ये आपको ढूंढने पड़ेंगे दोस्त। क्या लगता है, समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। क्या लगता है दोस्तों, यदि ये आपसे सॉल्यूशन बन गया है मतलब C3 C4 दिमाग में बैठ गया है, स्मेरा, सिद्धि, सिद्धेश, प्रथमेश, Yes. नमीशा, हाँ एक्सक्यूज्ड। सर C4 का ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 to 40 में आएगा।
30 to 40 में। 40 के ऊपर बहुत ज्यादा वो प्लांट कैसा होता है, प्लांट सर्वाइव तो कर जाएगा, बट 40 के ऊपर फिर डेजर्ट प्लांट की स्पीशीज आ जाती है दोस्त, और उसके लिए फिर एक और पाथवे होता है, दैट इज CAM। वी हैव, आई थिंक मैंने लिखवाया होगा, पूरा तो नहीं डिटेल, बट हाँ, CAM मैंने लिखवाया होगा। CM का नाम लिखवाया कि नहीं लिखवाया? लिखा है सर। क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, वो डेजर्ट प्लांट के केस में होता है, उसकी भी अपन चर्चा नहीं करें। अंडरस्टूड दोस्तों? यस सर। परफेक्ट बच्चों, बस एक लॉ है जो मैं अभी ब्रीफ कर रहा हूं, डेफिनेटली मुझे उसको पेज नंबर 2, 2, 3 बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा, बट नेक्स्ट इसमें मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास विल बी DC फॉर फोटोसिंथेसिस, और उस लॉ को समझ लीजिए, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। व्हाट आई एम टेलिंग, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लिसन केयरफुली ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। इफ द प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, if any process is affected by more than one factor, then the process is affected most by the factor which is required in least. Repeating my statement, दोनों अप्रोच बताता हूं, दोनों डायमेंशंस बताता हूं। If a process is affected by more than one factor, then it is affected most by the least present factor or least requiring factor, number 1. दूसरा डायमेंशन ऐसा देखते हैं कि if the process is affected by more than one factor, then the rate will be determined by the slowest process, और slowest process होती है जहां उस फैक्टर से अफेक्टेड जो उसे सबसे कम लगता है। अब इसका एग्जाम्पल ऐसे नहीं समझे तो थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रणव भाई, खाना खाने की प्रोसेस है जो एक से ज्यादा फैक्टर से अफेक्ट होती है। प्रणव, इज इट? यस सर। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, पापड़, मीठा, अचार, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके खाने की थाली को अफेक्ट कर सकते हैं या भोजन को अफेक्ट कर सकते हैं। बट डू यू नो you will be affected most by which factor? डोंट नो सर। मैं बताऊं? Which by sir? salt. Salt इतना ही लगता है, लेकिन यदि थोड़ा ज्यादा हो जाए या थोड़ा कम हो जाए तो पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करने लगता है। दाल में पानी ज्यादा हो जाए कोई समस्या नहीं है, सब्जी में पानी ज्यादा हो जाए कोई समस्या नहीं, तीखी थोड़ी ज्यादा हो जाए कोई समस्या नहीं, बट सोचिए पूरा खाना बेस्वाद हो जाएगा यदि नमक थोड़ा भी कम या थोड़ा भी ज्यादा हो। यानी रेट लिमिटिंग प्रोसेस का रेट लिमिटिंग फैक्टर वो है जो सबसे कम अमाउंट में लग रहा है, और वही पूरी रेट को डिफाइन कर दे रहा है। प्रणव, समझे? यस सर। मतलब मैं ऐसे भी कहता हूं, दूसरा एग्जांपल भी बच्चों को देता हूं। घर में हम लोग 7-8 मेंबर हैं और एक छोटा सा बच्चा है, साल 1.5 साल का, 2 साल का। यकीन मानिए आपके घर के सारे फैमिली डिसीजंस, फैमिली एक बड़ी प्रोसेस है which is affected by more than one factor or more than one decision। उससे तो कोई डिसीजन पूछ भी नहीं रहा है साल 1.5-2 साल वाले से कि क्या करना है भाई, लेकिन यकीन मानिए पूरा घर रुक जाएगा यदि वो रुक जाए, और पूरा घर रुक जाएगा यदि वो ज्यादा रोने लगे। यस और नो? यस और नो? यस। यस सर। यानी पूरी प्रोसेस की रेट लिमिटिंग स्टेप तो वही है ना जो सबसे लीस्ट लगने वाला है। दिस इज द ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। If the process affected by more than one factor, then rate limiting will be that factor which will be least requiring. और simple भाषा में कहता हूं, it is affected most by the least required factor. This is known as Blackman's law of limiting factor. And there are so many factors: light, temperature, water, quality of sunlight, CO2 concentration. These are the factors that we'll discuss definitely. In short, hardly of 10 to 15 minutes topic is left, and then we'll discuss the DC of the photosynthesis. And I expect that there will be so many doubts, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैंने छोड़ रखी हैं जो डाउट्स में आदि आपको आती हैं। If you come across the question, definitely it will be more effective to be discussed. Right, winners? सर हाँ बोलिए। सर आप आज का लेक्चर अपलोड कर सकते हैं?
भाई मैं सारे लेक्चर अपलोड कर देता हूँ और आज का क्या बोल रहा है मिश्रा जी, ऐसे क्यों एलिगेट कर रहा है मेरे पे यार। तो मतलब वही कंफर्म करो कि मतलब आपके माइंड से स्लिप ना हो जाए। ओके कोई बात नहीं, अभी कर देता हूँ दोस्त। मैंने कहा था ना पहले भी, कुछ खिला पिला दिया कर मिश्रा मेरे को, तो मैं तेरी बात जल्दी सुन लिया करूँ। ओके चलिए, एनी डाउट इन टुडे सेशन? No doubt, sir. No, sir. चलिए, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द DC1। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज्ड। सर मैंने आपको सैटरडे के दिन आप बोले थे कि आप सेंटर पे आओगे, सर आप आए नहीं। सैटरडे मैंने मैंने आपको कहा था फोन भी सेंटर किया। पे, ऐसा होता मैंने नहीं आपको दोस्त कि फोन मैंने कहा हो कि